اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 28 دسمبر 2025 سال کا آخری روز جا رہے ہیں اور اتوار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ المنافقون ہے، 63 نمبر صورت ہے، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 718 پیج پہ سورہ المنافقون شروع ہو رہی ہے، اور آپ کو بتائیں گے آپ قرآن سے کہ قرآن منافقین کن کو کہتا ہے۔ کیا ہم تو نہیں ہیں اس میں شامل؟ یہ ہے دیکھنے والی بات۔ دراصل سننا اپنی جگہ سننا چاہیے، لیکن جو اس کے اندر بات آ رہی ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ بات کیا آ رہی ہے کہ یہ 1400 سال پہلے والے لوگوں کی تھی یا آج بھی ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ قرآن تو قیامت تک چلنا ہے۔ تو المنافقون، نافقہ، جیسے عربوں کے ہاں نافقہ کس سے کہتے ہیں؟ نافقہ دو اندر معنی ہے۔ ایک تو ہے نافقہ سونگ، جس کے دونوں سرے اوپن ہوتے ہیں، اس کو نافقہ کہتے ہیں۔ یہ مال کے حوالے سے بھی ہے، یعنی آپ کے مال آئے تو آپ نے اس کو کھولا رکھنا ہے، اس کو بند نہیں باندھنا۔ اور دوسرا یہ ہے، اس کا مطلب اس سے ہی منافق بنتا ہے۔ منافق بھی دو سرے رکھتا ہے ڈانگ مارنے کے، جیسے دو منہ ہوتی ہیں، دو منہ سپ، یہ منافق دو منہ رکھتا ہے، منہ سپنی جو ہوتی ہے وہ ڈانگ مارتی ہے بڑی زبردست۔ تو اس زمانے میں انشاءاللہ رہنمائی لیتے ہیں کہ المنافقون کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں بیک گراؤنڈ کے لیے۔ سورہ البقرہ نکالیں، کیونکہ ہمارا موضوع کبھی قرآن رہا ہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے۔ قرآن نہیں موضوع، پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ پہ، قرآن کو سمجھنا یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تو یہ صفحہ نمبر 3 پہ آیت نمبر ہے 8، البقرہ، سورۃ البقرہ 2 نمبر صورت، اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ یہ جو درس ہے بڑے ہی غور سے سننے والا درس ہے۔ اس میں ہمارے ہی حوالے سے باتیں چلیں گی، ہمارے پر بالکل منطبق ہوں گی یہ آیات۔ فرمایا، یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں قرآن جو شروع ہوتی ہے البقرہ، اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں 1 سے لے کے 5، یہ ہے مومنین کے حوالے سے، مومن کون ہے۔ اور اس کے بعد 5 اور 6 اور 7، یہ 2 آیات ہیں آیات کافروں کے حوالے سے۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے اللہ کا، اللہ کے کلام کا، اس کے انبیاء کا۔ اور اس سے بعد جو آیات 8 سے لے کے بھی چلتی ہیں 20 تک، اس میں منافقین کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ منافق کون ہے؟ یعنی دیکھیں، 5 ایمانیت کے حوالے سے، 2 صرف کافر کو حوالے سے جو منکرین ہیں، اور 8 سے 20 تک آپ کو منافقین کے حوالے سے یہ ملیں گے۔
منافق کی نشانیاں ملیں گی، منافق کے متعلق ملیں گے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس میں اندر رکھ کے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ مکہ کے منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہ منافقین صرف اس ایج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آج بھی قرآن ہر ایک کے لیے ہے۔ قرآن قیامت تک چلنا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں جتنے بھی انسان آئیں گے سب اس کے اندر سے گزریں گے، یہ آیات میں سب پر بھلائی ہوگا۔ فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے ہم سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ ہمارا بھی بلیو ہے نا، ہمارا مسلمانوں کو، ہندوؤں کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے متعلق یہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے، اوپر سے کہہ رہے ہیں، ہاں دل سے نہیں، ابھی آئے وَمَا هُمْ کیسے مومن تھی؟ فرمایا یخادعون اللہ، خدا کرتے ہیں تو اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہم ہیں، میں جو ہوں بیٹھا درس کر رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اگر میں عمل نہیں کر رہا اس آیت میں بھی شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہو، حالانکہ یہ دھوکہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، فراڈ اپنے آپ نہیں کر رہے ہو۔ وما یشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ اس وقت کے انسانوں کو بھی جو گھسے ہوئے ہیں مومنین کے اندر، ان کو بھی کہا جا رہا ہے شعور ہی نہیں کہا، کتنی بڑی گل پہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ شعور نہیں ہے اس بات کا، کیا کر رہے تم؟ فی قلوبہم مرض، اللہ فرما رہے ان کے اندر یہ مریض ہیں، ذہنی مریض، دلوں میں کوڑ ہے ان کے اندر۔ فی قلوبہم، دلوں میں امراض ہے، مرض ہے، یہ بیماری ہے، دھوکہ کرنا، خدا کرنا۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے مرض میں اضافہ ہی ہوتا جاتا رہتا ہے، بوجہ ان کے استعمال کی۔ ہاں، مال کے دوغلا پن۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، ہاں، عذاب المناک عذاب۔ کیوں ہوگا؟ یکذبون، یہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، ہاں، یہ اس قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے فرامین کی تکذیب کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ تکذیب کا مطلب نہ مانتے ہیں تو عمل بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی تکذیب ہے، تکذیب کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا یہ اس کی جو سزا ہے وہ سن لیں، جلدی اس صورت پر چلتے ہیں۔ یہ تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جو صورت آئے گی نا آپ کو پتہ چل جائے کہ کیوں اس طرح اللہ نے بیان کیا۔ صورت
मुनाफिकून, ये 4:145 देखें ज़रा सूरह निसा। इसकी, हाँ इसकी मैं आपको सलाह बता रहा हूँ। बंदे को खौफ खाना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं हम तो नहीं है। अल्लाह डराने वाली चीज नहीं है, इस कानून की खिलाफ हाँ, हमें खौफ रखना। 124 सफ़ा है, सूरह अन-निसा 4 नंबर है, उसकी आयत नंबर, हाँ उसकी आयत नंबर 145 है। पढ़ें हाफ़िज़ साहब। 45 145 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 145। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फलि मिनन नारि वलन तजिद लहुम नसीरा إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. या इतना ही काफ़ी है। नहीं, अगली आदमी पढ़ दो। नहीं, मैं ज़रा लंबा हो जाएगा। तर्जुमे के साथ सिर्फ 145 देखें आप। ये मुनाफिकों की सज़ा की बात हो रही है। वो जो कहते हैं, हम जो कहते हैं ना, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अल्लाह कहता कोई ईमान नहीं रहा। तुम्हारी ये सज़ा है। ज़ालिमों, फरमाया इन्नल मुनाफिकीन, ये दो धारी तलवार वाले जो लोग हैं, दो मुँही, उनकी बात हो रही है। ये हम हैं, दिल में कुछ, ज़ुबान पर कुछ। हम रंगी नहीं, हम आहंगी नहीं है, दिल और दिमाग ज़ुबान के साथ। ये मुनाफिकत होती है। डुअलिज़्म कहते हैं इसको। दो रंगी, दिल में कुछ, ज़ुबान पे कुछ। हिपोक्रेसी भी कहते हैं। हिपोक्रेसी सारा हमारा जो पाकिस्तान है वो इस रंग में रंगा हुआ है। दोगलब। किसी के पास चले जाए, किसी दुकानदार के पास, दफ्तर में, किसी का पास, वो ज़ुबान कुछ कह रही, दिल कुछ कह रहा है। ये मुनाफिक की आला तरीन निशानी है। दिल और जो ज़ुबान है वो हम आंग नहीं है। फरमाया इनके लिए ये जो जिनका ये वतीरा है, जिनका ये है, हाँ, वो उनकी सलाह बताई है अल्लाह ने। और हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्नल मुनाफिकीन, बेशक मुनाफिक कौन होते हैं, उनकी सज़ा क्या होती है? फिर दरकिल अस्फल मिनन नार, आग के जो पाताल हो गया ना, आप पाताल जो आखिरी सिरा या कह रहे हैं, सबसे डीप एंड जो सबसे गहराई, वो जो दर्जा होता है हीट का, उसमें ठिकाना है हाई डिग्री। हमें डर नहीं लगता इन बातों से। ऐसे पढ़ के चले जाते हैं कारी साहब, रोज़ों को ख़ास तौर पे। ये कितनी दफ़ा ये आयत आए होगी, किसी ने ध्यान ही करा है। मुनाफिकीन, ये तुम्हारा है आखिरी अंडर। ये इस जगह पर जाओगे, मिनत दरकिल असफल, असफल होता है सबसे जो होता है
ردی چیز جسے کہتے ہیں، یعنی سب سے گندی پراگندہ ٹھکانا، سب سے شدت جس میں آگ کی ہوتی ہے. ہاں شدت ہوتی ہے. پست ترین مکان، پست ترین مقام جو ہے اسفل سافلین اس کو کہتے ہیں. وہ سورہ 3 میں ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین. آل عمران جی. ہاں نہیں 95 نمبر اور عمران نہیں، والتین والزیتون اس میں آتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. سورہ ہاں جی، پست ترین جو ہو گیا جگہ اس میں جاؤ گے تم. منافقین انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بڑا تنگ کیا. یہ جماعت اتنی خطرناک کیٹیگری تھی، ہے مسلمان تھی، مسلمانوں کو اندر رہتے تھے لیکن دو منہ کی طرح چلتے تھے. انہوں نے بہت تنگ کیے، بہت تنگ کیے. بڑے واقعات ہیں اس میں آئے ہیں. سو انہوں نے مدینہ کے اندر جا کے ایک مسجد بنائی اپنے ٹھیا علیحدہ، اس کا نام ہے مسجد زرار. میں اب بھی حوالہ آتا ہے تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کوئی مددگار نہیں پاؤ گے تم ادھر. جتنی انہوں نے اذیتیں دی نا مسلمانوں کو، کافروں کے ساتھ مل کر، مشرکین کے ساتھ مل کر، یہود کے ساتھ مل کر، کسی نے نہیں دی. اس لیے ان کا یہ درجہ رکھا ہے آج کا. بھائی دیکھ لے یہ 9 نمبر ہے. توبہ. ہاں سورۃ توبہ میں اتنے شدت پسند، اتنے یہ تھے نا. صفحہ نمبر 243. کچھ چیزہ میں لاؤں گا تاکہ آگے چلے ہیں ہم سورۃ منافقین پر. 243 صفحہ ہے سورۃ توبہ کی، یہ 67 بالکل. لاسٹ میں بالکل فرمایا المنافقون والمنافقات، دونوں عورتیں اور بندے جو بھی منافق ہیں یا منافقات ہیں، بعضهم من بعض، دونوں ایک دوسرے میں سے ہے. جوڑ ہے ان کا، عورتیں ہوں یا بندے ہوں. فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ یامرون بالمنکر. ان کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کو منکرات سکھائیں گے، انکار کرنے والی باتیں، اللہ اور قرآن سے ہٹانے والی باتیں، منکرات. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف باتوں سے منع کریں گے. جو اللہ نے کہی ہیں باتیں کرنے کے لیے ان سے ہٹائیں گے، ہٹاتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک رکھتے ہیں کہ خیر کا کام نہ ہو جائے ان ہاتھوں سے. نسوا اللہ فنسیہم، اس طرح یہ اللہ کو بلا چھوڑتے ہیں منافق اور منافقات. منافقوں کا رویہ یہ ہے، عورتیں بھی کرتی ہیں بندے بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو بھلا دیتے ہیں. اصل میں فنسیہم، دراصل یہ اپنے آپ کو بلائے رکھتے ہیں. ہم نے بھی جواب دینا اللہ کو اس بات کو بولے ہوئے ہیں. ان المنافقون هم الفاسقون، ان المنافقین هم الفاسقون. یہ دیکھا، یہ منافق ہی فاسق ہوتا ہے. فاسق کا فاجر لفظ سنا ہے، مولوی صاحب گواہی کرتے ہیں
फासों को फाजरों से बताई। और अल्लाह तक बंदे अपने आप देख लो, तुमसे नहीं हैगा इस कैटेगरी च। इन्नम मुनाफिकीना हुमुल फासिकून, फासिक होता है जो अल्लाह की हिदायत से कोसों दूर होता है, उसको फिस्क कहते हैं, अल्लाह के नाफरमान। अल्लाह आगे फरमा रहे हैं वअदुल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकाति वल कुफ़ारा नारा जहन्नम। ये हमें बताया जा रहा है भाइयों, हमें सिर्फ सुनना नहीं है, ये हमारे ऊपर लागू होती हैं बातें। हमें इससे सबक लेना चाहिए। अल मुनाफिकीन वअदुल्लाह, अल्लाह ने वादा कर रखा है किसके साथ? अल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, कि इनको क्या हो गया? वल कुफार भी आगे साथ, टोटल जो इनकार करते हैं वो भी शामिल है इसमें। कहा नारा जहन्नमा, नारे जहन्नम इनका हो गया ठिकाना, और खालिदीना फीहा, और हमेशा हमेशा इसके अंदर रहेंगे। ये तीनों कैटेगरी, मुनाफिकीन, मुनाफिकात और कुफार, और मनसूल्ला करने वाले, अल्लाह को भूलने वाले, फासिक, ये इनका ठिकाना ये जहन्नम है। और फरमाया हिया हस्बुहुम, हम इसी के लायक होंगे। बढ़िया दुआ कर देने, बख्शिश है, मरने तो बाद दुआ करे जी, मेरे बाबे वास्ते दुआ, मेरे अब्बे वास्ते, मेरी माँ वास्ते, दुआ कहाँ जाती है वहाँ? हिया हस्बुहुम, ये इनके लिए काफ़ी है। इस कैटेगरी के जो अफराद होंगे ये जहन्नम में रहेंगे, यही काफ़ी है उनके लिए। आगे है वलअनहुमुल्लाह, और अल्लाह की लानत भी इनके ऊपर होगी। किनके ऊपर? दोगले पर, दोगला। ये सारा माशरा, सियासतदान हो, मजहबी पंडित हो, पादरी हो, ये सारा माशरा, कोई भी किसी किस्म का बंदा हो, ये मुनाफिकत पे मबनी है। किसी दूध वाले को पूछो, यानी हकीकत तो उसके बरक्स है जो वह बयान कर रहा है, इसको मुनाफिकत कहते हैं। दूध में पानी बिना हुआ कभी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। यानी उसकी जो डिफाइन करेंगे और जैसे असलियत सामने आएगी, डोला सामने आ जाएगा, कहेगा पानी नहीं, हालांकि पानी है, झूठ वाला है। गोश्त वाले के पास जाएं, गोश्त ने क्या करता पूरा हाथ है, सब्जी वाले पास, फल वाले पास, और जो कपड़े वाले उनके पास, कोई भी ज़िंदगी का शोबा ले लें, इसको कहते हैं ऐसी नार जिसने घेरा कर रखा है। ला मुहिततुम नार, हाँ उतो खुशी बिच ये दफ्तर में चले हराम साहब, झूठ बोले तो सवा गाली नहीं करें, असल गाल नहीं दसेंगे। ये माशाल्लाह सारा मैं अपने वो के पेश करता हूँ, जो भी इसमें शामिल होगा। दर्स कुरान करना और बात है, अमल करना और बात। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल। तो कितने जाएंगे जन्नत में? किसी की बख्शिश नहीं होनी, ना किसी ने सिफारिश करनी। अल्लाह ही रहे वो। ये बहुत बड़ा एक किस्म का इल्ज़ाम है। जब तक अल्लाह के अहकामात को ना, अल्लाह के हकामात के बरक्स चलना और सिफारिशें करवाना। रसूल सिफारिश करेंगे दो नंबरियों की, दोगलों की, इनको समझ नहीं आती, सिफारिश करेंगे। बड़ा आम तस्वर है, एक नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। रसूल और सिफारिश करेंगे। रसूल मोमिन नंबर 1, मुस्लिम नंबर 1, वो इन फराडियों को सिफारिश करे।
और पहले तल्लक तो कायम करो, उनके साथ तल्लक है हमारा, हमारा तो तल्लक ही मन करता है। कभी आयत गुजरी है आप आपके सामने, सूरह अल-अनाम की 159 आयत, तल्लक ही ख़त्म है अल्लाह के रसूल से हमारा। लस्ता देख लें 659 लाएँ सामने, आपके इल्म में इजाफा हो और बताएं जाके इन जो मुशरिक बैठे हुए हैं। अल-अनाम 184 सफ़ा, 184 इस आयत को ज़मानी याद कर रहे हैं। बताएं लोगों को, बताएं जो फ़िरका परस्तों को हेड हैं, फ़िरका परस्तों के हेड शफीक साहब समझ आ रही है? जी जी सर, फ़िरका परस्तों के हेड को जानते हैं आप? कही है जी। कही है ना? हाँ, इनके सब की क्लास ली है अल्लाह ने। 1400 साल से ऊपर अरसा हो गया, 1447 साल हो गए इस बात को आए हुए। पढ़ें जी हजरत, पढ़ के बताए 159 184 सफ़े पे 159। الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء हाँ जी, पढ़े إنما नहीं हो उसका तर्जुमा ढूंढे। पढ़े इसी लाइन। जिन लोगों ने अपने दीन में बहुत से रास्ते निकाले और कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले, फिर जो कुछ वो करते हैं वो उनको सब बताएगा। बयान करें ना, मस्जिद में बड़े खड़े होगा। सब आगे सुन्नी, शिया, वहाबी, अहले हदीस जितने भी फिरके हैं, रसूल से उनका तलक मुनक़ता कर दिया गया है 1447 साल पहले। अल्लाह का हुक्म। इसका कुछ तर्जुमा तो करके दिखाएं इसके अलावा। ये जो अल्लाह का तर्जुमा उनको बताता है, वो उससे तल्लक मुनक़ते कर लेते हैं। हाँ हाँ उनके बस में, बस उनके बस में ये है। हाँ, और कहता कितों आगे कुरान पेश करना नवा ही आ गए, साढ़े बापे मर गए हैं सारे। ये बात सही है। फरमाया इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, यहूदियों को नहीं कहा जा रहा, हमें कहा जा रहा। जो भी करेंगे दीन में फ़िरका बंदियाँ, इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, और ग्रोह बंदियाँ करेंगे, जत्थे बनाएंगे, पार्टी बाजी करेंगे। फरमाया लस्ता मिनहुम फी शैइन, ए रसूल आपका तलक इनसे मुनक़ता हो गया, आपका कोई सरोकार नहीं है इनके साथ। लस्ता मिनहुम फी शैइन इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, इनका मालूमाला अल्लाह के सुपर्द है। सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून, बता दिया जाएगा इनको जो कुछ करते आए हो। लाखों हज़ारों मुरीदैन बनाए थे अपने जमातों ने, ये सब फारिग है अल्लाह की नज़र में। रसूल के साथ कोई तल्लक नहीं, रसूल के साथ तल्लक नहीं, अल्लाह के साथ कोई तल्लक नहीं। लस्ता मिनहुम फी शैइन, इसका तर्जुमा आप उन्हीं से करा ले जाके जो फ़िरका बंदी बना के बैठा हुआ है। फिर चक्कर देंगे, अच्छी फ़िरका नहीं, असी मसलक कहने हैं जी, साढ़े मसालक है। अच्छा मसालक ही होंगे, दीन में मसालक बनाना जायज़ है? अकीदा कई काट देना हम अपने कोलों घर। लस्ता मिनहुम फी शैइन, वो अल्लाह नहीं बाबा, ये शिया भी तो का है ना, ग्रोह शिया, किसी ग्रोह किस्म का बनिया। अगर आप अपना जत्था बना लेते हैं, हाँ। अपने नाम मंसूब कर लेते हैं, सारे आ जाते हैं। हाँ, सब सारे आ जाते हैं। दो ही गिरोह दुनिया में, हिज़्बुल्लाह हिज़्ब शैतान, दो ही गिरोह, तीसरा को कोई नहीं है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वक़ाल, इस आयत को अच्छी तरह सीने में संभालें, हाँ जी, उनको पूछें जुगादरी
फिरके बनाने वाले ये क्योंकि ये मस्जिदें ही में लादान है ना, ये सुन्नियों की है, ये वहाबियों की है, ये बरेलवी हैं, ये देवबंदी हैं, है ना। तो इन सब मसाजिद अल्लाह कहलाएंगी, मसाजिद अल्लाह नहीं है। ये अल्लाह के मस्जिद में ये खड़े ही नहीं हो सकते, इनको याद नहीं है। ये ज़रार है। ये ज़रार है, ये है ज़रार मस्जिद मस्जिद ज़रार बनाने वाले। जो पचाती थी ना मोमिनीन को ज़रार कहा है। ये देखें आगे 251 पेज पे। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਹੈ। वो मसलों को ही फेंका ही है, चक्कर दे देना। वल्लज़ीन तख़ज़ू ज़रारा। हाँ जी, आयत 107 सफ़र नंबर 251। जी रसूल को और मोमिन को मना कर दिया गया था एक मस्जिद के करीब भी नहीं जाना, पाँव भी नहीं रखना। सारी मस्जिदें ज़रार हैं, ये अल्लाह की मस्जिदें नहीं हैं, कहीं गलती ना लग जाएगा आपको। और यह है मस्जिद अल्लाह अंदर की है। इंजन खड़ा होते, इंजन को देखे, इंजन कौन सा है, हाँ किस मेड का बना हुआ है इंजन, जिसके पीछे नमाज पढ़नी है, वो कैसे कैदा करेगा। फरमाया वल्लज़ी नत्तख़ज़ू, आयत नंबर 107 है, जी जी सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 107। ये मस्जिद ज़रार के हवाले से अल्लाह ने रिकॉर्ड किया है। वल्लज़ी नत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़रारन, ज़रार का मतलब ज़रर नुकसान, नुकसान जो मुसलमानों को मोमिन को नुकसान पहुंचाती थी, उसको अल्लाह ने नाम दिया ज़रार, जिसे में अल्लाह के कावानीन के अलावा दीगर पूथियाँ, कहानियाँ, किस्से बनाई रवायताँ, झूठियाँ हदीसाँ बयान की जाती हैं, वो मस्जिद ज़रार है, मस्जिद अल्लाह नहीं है। हाँ क्योंकि ज़ोर पहुँचाती हैं कुरान को, कुरान के ख़िलाफ़ बयान करते हैं, खड़े हो गए। दुश्मनी अल्लाह है। ये कौन है? कुफरन तफ़रीक़ा बैनल मोमिनीन, ये कुफर डालते हैं और मोमिन का दरमियान तफरीक पैदा करते हैं। फरमाया व इरसादन लिमन हरबल्लाहु व रसूलहु मिन क़ब्ल, ये करके क्या करते थे, हरब जंगें, ये उन्होंने अपने बनाए होते, जिसे कहते हैं ना वो जो डिगिंग के क्या बनाते हैं फौज वाले, मोर्चे, खंदके माइया, खंदकी थी अल्लाह के ईमान वालों के खिलाफ। उसको कहा गया वला यहलिफुन्ना इन अरादना इल्लल हुस्ना, कहते थे सीधी बड़े हुसन का नाम काम करने वाले लोग हैं, इसमें तो उन्हें बड़े काम कर रहे हैं, हुसन वाले काम, अच्छे अमाल करेंगे, उस मस्जिद में खड़े हो गए। तो अल्लाह ने बताया वल्लाहु यशहदु, अल्लाह शहादत देता है इस बात की, इन्नहुम लकाज़िबून, ये झूठे हैं। झूठ बोल। और की करना अब यहाँ क्या आता है, ये इन मस्जिद में सवाल लड़ाई बड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, क्या होता है? बाद में मस्जिद का नाम ज़रार रखा है जे। अच्छा हाँ सी बड़े अच्छा बंदों ने रखे हैं। अच्छा अच्छा। बंदे ने रखा, चौंका का भी नाम अल्लाह ने फरमाया देखो ये हमारे लिए मिशअल राह कुरान, मिसलीडिंग। हाँ अल्लाह फरमाया लाक तकुम फीही अबदा, हाँ जी ऐसो ये जो ज़रार मसाजिद हैं उनमें कभी खड़ा ही नहीं आना आपने। असी जाके मस्जिद इमाम दे पीछे नमाज पढ़ने पहली रकात बड़ा सवाब होता है। ला तकुम, मत खड़े होना, फी ही अबदा,
इस मस्जिद में नहीं जाना, खड़े भी नहीं होना कि रसूल से हम बढ़ कर हम नाउज़ुबिल्लाह, नहीं, हम तो जाके उसके पीछे खड़े होते हैं ज़्यादा सवाब के लिए, उस इंजन के पीछे अपनी बोगी लगा देते हैं, चलो भी सानू भी ले जाना है, जिथे आप मरेंगे डिगेंगे असी भी तेरे नाल ही आवांगे। ਇਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋ ਵੈਸਾ ਐਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲਾ ਤਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ, मना ਬਦਲ ਲੱਗੇ ਮਜਨਾ सब देख रहे हैं, इधर परख रहे हैं अल्लाह दे बंदे सही भी है कि नहीं। मोमिन नहीं ਜਾਂਦਾ, जी बिल्कुल, मोमिन ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, यकीन जान। बिल्कुल साढ़े मरकज़ी साहब आते थे ना कराची, वो भी नहीं किसी मस्जिद में, कहना मैं क्यों जाना, वो अपने ईमान ख़राब करना है, मैं ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ मुझे पता ही है मुशरक है, ਬਸ रसूल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं जाके अब बोगी लगा दा उस इंजन के पीछे, वो भी कहते थे ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਫੇਲ ਹੈ ला तुकुम सही रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। ला तकुम फी ही आबादा, क्या हमें नहीं है ये हुक्म, सिर्फ उनके लिए था, हमारे भी। ये मैं कहता हूँ कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए। आगे है ला मस्जिदुन उसी सा अल तकवा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अम तक़ूमा फीही, जिसकी बुनियाद तकवे पर हो उसमें सिर्फ जाना है। मुझे ले जाए कोई ऐसी मस्जिद जिसका अल्लाह के नाम वाली मस्जिद, अल्लाह के कुरान फिर पेश किया जाता हो, ले जाए। पाकिस्तान सारा 54 नंबर है, लाखों मस्जिदें हैं कि किसी एक मस्जिद में जाके दिखा दें, किसी ना फिर किसी फ़िरके की होगी, तो फ़िरके से अल्लाह ने अपने रसूल का तलक ही ख़त्म कर रखा है, पता नहीं इनको, पता होना चाहिए। फरमाया रिजालुन युहिब्बूना अन यतहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन। इन मसाजिद में जो अल्लाह की मसाजिद होंगी, तकवा के बुनियाद पर कायम होंगी, उसमें जो लोग जाएंगे वो ताहिर हो गए, तहारत को पसंद करते होंगे, पाकीज़ा, हाँ, शिरक से पाक। शेख से पाक। सबके सबसे बड़ी ताहिर होता है शिरक से पाक हो, शिरक मिलावट ना हो, उसे ताहिर कहते हैं। ना आला या वज़ू को तहारत नहीं होती, तहारत तो हमारा ज़हन की पहले होनी है। शिरक ख़त्म करो, शिरक की माफ़ी नहीं है। फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन। एक लाइन पूरी सारी कवर करती है। अभी तो काफ़ी आयात हैं, अब चलते हैं तो थोड़ा मुनाफिकून वो भी चखें क्या देती है शेष। पेज नंबर 718। मैंने बताया ना कि जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमात मोमिनीन को इस कैटेगरी तंग किया था, कोई और कैटेगरी नहीं थी। अब ज़रा इनकी हकीकत अल्लाह से पूछें, क्या फरमाता है अल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 718 पेज है, जी जी सूरा अल मुनाफिकून। हज़रत ज़रा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। क्या कैसा अल्लाह ने निखार के रख दिए, नक्शा खींचा है। नक्शा खींचा। ये अल्लाह की शहादत है, अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है इस बात की
کہ آئے ایک جتھا یہ منافقوں کا اذا جاءک المنافقون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں حاضر ہوئے تے بڑی آ کے نا فلیٹری شروع کرتی، ان کی تعریف شروع کرتی، شہادت دے رہے ہیں منافقوں کی شہادت کیا کریں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، بات سچی کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ اے رسول آپ اللہ کے رسول ہو۔ جی آئے منافق جو جن کی باتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں آ کے گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ دلوں کے راز نہیں نہ کر ہاں وہی نا اوپر سے ہاں اللہ نے اللہ کے ذرا پکڑ دیکھو، اللہ ایک منٹ تو پہلے ڈیڑھ 9 سیکنڈ پکڑ کر لینا سی رڈار میں آ جاتا ڈان میں انہیں اچھا تسی آئے گواہی دانی میرا رسول اللہ کا رسول ہے کہا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، تسی گواہی دے آئی ہو۔ آگے کہ فرمایا واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، اللہ بات سچی کر رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے اندر سے، زبان سے صحیح کہہ رہے ہیں، بات غلط نہیں کر رہے۔ اندروں نہ منن دی وجہ نال جھوٹے ہاں جھوٹے وہ بالکل وہی ہے نا، وقار صاحب سمجھ آئی بات کی بھئی گل سے صحیح کر رہے ہیں، گل سے کوئی شک نہیں ہے، اندر جھوٹے دل نہیں مانتے، زبان اور دل یہ ایک نہیں ہے، ایک لائن تو نہیں ہے۔ ہاں ڈیوریزن یس کہو اعظم صاحب بات تو صحیح کر رہے تھے نا، بات غلط کہ نہیں کر رہے۔ اللہ کہندا ہے کہن دے باوجود وہ دودھی آتا ہے نا، دلاں دے بھیج جاندے دودھی کہتا ہے یہ خالص دودھ ہے، اندر نہیں کہہ رہے، اندر تو پانی پا کے لیا ہے سارا، انہیں پتہ پانی پایا ہے۔ ہاں جی بالکل اللہ کی قسم اندر دے گھر پیندا پھر قسماں کھان گے من پانی۔ نہیں سر نہیں سر اللہ فرمایا انہم ان المنافقین، یہ منافق ہیں، اور لکاذبون، یہ جھوٹے منافق پرلے درجے دے، سانو نہیں گواہی چاہیے انہوں نے، منافق تے کیٹیگری ہے اس نال جس دے باوجود جھوٹے بھی کاذبون، گل سچی کر دے میں نے لیکن اندر جھوٹے نے، اندر نہیں مانتے انہوں۔ دیکھا یہ ہے قرآن۔ خالد صاحب سمجھ آئی؟ جڑا بیچ رہے چیز وہ کہہ رہے بڑا ہی ہے یہ لیکن اندروں انہوں پتہ ہے اندروں چور ہے، چور ہے، اندروں چور ہے، تو وہ گواہی منی جائے گی؟ اللہ نے فوراً ریجیکٹ کرتی ان کی گواہی۔ اللہ نے کہا تہاڈی سانو کوئی ضرورت نہیں گواہی دی، میں کہنا میرا رسول، تسی کون ہوندے جھوٹے ہو، منتے تو ہے نہیں انہوں، وہ گل تو منتے نہیں، کس طرح تسی کہہ سکتے ہو سچا؟ اللہ فرمایا ہے کردے کی نے یہ جو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے، یہ جتنے مذہبی پنڈت، سیاسی پنڈت، جتنے بھی زعماء بنی پھیلتے ہیں سب منافق ہے، پتہ کہ پورا معاشرہ منافق ہے، باوجود کہ قلم اور پڑھتے ہیں اور آخرت تو کوئی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ما ہم بھی مومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے قسمہ کھانے جو سید کہنا ہے نا، دو دی قسمہ کھانا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے بات کرتے ہیں، اللہ دی قسم، فلانے دی قسم، رسول دی قسم، تے دو گوشت پانی پایا ہونا، کپڑا کٹ توڑ دے، سبزی والا اور پھل والا وہ چیز وہ پھڑدا جڑی خراب رکھی ہوندی نا دکان 'ਚ، پہلے ہاتھ اتنے جانا
गली सड़ी चीज से कसम वहाँ खाई जाएगा। ये हमारे जो खड़े होते हैं मेंबरों पे कसम में खा खा के कि बयान करी जाने की झूठियाँ हदीसां झूठियाँ रवायतां कसम में खा के। ये क्या है? मुनाफिकत नहीं है, यही मुनाफिकत है। सबसे खतरनाक कैटेगरी यही है अल्लाह की नजर में। फसद्दो अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की जो तरफ रास्ता जाता है सब बड़े संगे ग्रां ये हैं, पत्थर भारी बरकन पत्थर, रुकावटें हैं। ये रुकावटें हैं। जो मुनाफिक हैं फरमाया इन्नहुम साआ मा कानू यामलून, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाय हाय, ये इनके कुछ काम नहीं आएंगे, बेशक इसका बड़ा बुरा मामला होएगा इनके इनके साथ। सारे अमाल खारिज हैं हाँ, जो भी कर रहे हैं। शायद अल्लाह फरमाए ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये मुसलमान थे भाई उस ज़माने के भी, आज भी हम मुसलमान हैं। अल्लाह कह रहे ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये अपने आपों को ईमान वाले समझते हैं। सुम्मा काफरू, वो कफर करते हैं, इनकार करते हैं अल्लाह की बातों का। ईमान वाले कह के फिर इनकार करते हैं, कुफर करते हैं। अल्लाह फरमाया फताबा अला कुलूबिहिम फहुम ला यफक़हून। हाँ फतोबिया, हाँ फातोबिया, फतोबे आला हाँ फतोबिया, तबाह कर दिया अल्लाह ने इनके दिलों पे। वैसे वो ऐसा है यानी अपने करतूतों की वजह तो आप ही तौबा कर लेते हैं, अमाल वो खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम वाला सब। आप ही कर लेते हैं। अल्लाह तो ब्लेम नहीं आना चाहिए, अल्लाह नहीं करता तो वजह अपने अमाल दे हाँ बिल्कुल। केड़ा अमल कर रहे हैं। ला यफ़क़हून, हम जो अमाल करते हैं हम खुद अपने दिलों पर मौत सबत करते जा रहे हैं। अल्लाह नहीं करता, अल्लाह करे तो अल्लाह पे इल्ज़ाम है। अल्लाह नहीं ऐसा अल्लाह नहीं कर, अल्लाह सच के साथ हाँ अल्लाह ताला जो है वो सच्चाई वाले का साथ देते हैं। कहता है असल में वजह ये है क्यों करते हैं ऐसे, ला यफ़क़हून, तफक्का नहीं करते हम कि सानू इधर रिजल्ट की मिलना, तफक्का नहीं करता इंसान मोमिन। ला यफ़क़हून, सिर्फ एक आज लेके ना अगली फिर हम वाइंड अप कर लेंगे। ये बड़ी सूरत ज़बरदस्त है, एक एक लफ्ज़ इसका जो है गार तलब है और इसके अंदर बड़ी रहनुमाई मिलेगी हमें। शायद अगर समझ आ जाए तो हम अपनी लाइन दुरुस्त कर लें। बिल्कुल सही। और असल में यही बात है इस कारान की महफिल की। सर इसमें कहते हैं झूठ को आँच नहीं, झूठ के पाँव नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे। कॉन्फिडेंट ये आजकल जो गिल साहब जो लो रीजन समझते हैं ना, बड़ी चंगी तरह सर समझते हैं ना, ये जो सफारती ज़बान होती है ना, डिप्लोमेसी कहते हैं उसको। हराम खोर मुंह में कुछ होता है, दिल में कुछ होता है, लिखने में कुछ आता है। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है जी, पॉलिटिकली करेक्ट। बात समझ में आई मेरे भाई। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अमेरिका ने ये लिख दिया, रूस ने ये लिख दिया, पाकिस्तान ने ये लिख दी, वही मुनाफिकत है ना। यही मुनाफिकत है और क्या। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इज इटसेल्फ। वो समझ रहे हैं हम, ज़ाहिर है सही कह रहे हैं, लिखा भी सही है, लेकिन उनको पता है हमने डंडे मार रही है इसके अंदर, अमल वो नहीं। मान नहीं करना। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आए हाय हजरत समझ आ रही है? कमर साहब
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੇ ਕਰਾਰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। हाँ 25-30 साल तो समझ आ रहे ਉਹਨੂੰ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहते हैं। ये असल में मुनाफिकत की ज़बान कहें आप, मुनाफिकत का असूल या असलूब भी है, दिल में कुछ है और मुंह में ज़ुबान पे कुछ है, करना कुछ है। दोहरा तेरा मयार, ये सब फ्रॉड है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तुम वही लिखो जो करना है। उन्हें ना लिखना पड़ा। आगे है ला यफ़क़हू, फिक्र नहीं करते वो लोग, फिक्र नहीं करता इंसान कि मैं तो नहीं मुनाफिक, ज़ुबान साहब समझ आ रही है। ये सवाल ये समझते हैं। हमें हो रहा है ये दर्शक, हमारे लिए जो बात समझ रहे हैं वो सुन रहे हैं। किसी का क्या मुनाफिक कहना, पहले अपने आप को दुरुस्त करने इंसान, घर में भी बच्चों के साथ, बीवी के साथ, वहाँ भी मुनाफिकत करता है कदम कदम पे। उसको पता है मैंने काम नहीं करना ये, तो शाम को वैसे ही आ जाना घर में, कह के गया करके आऊँगा, दिल से पता थी मेरे को होना ही है। तो ये मुनाफिकत नहीं है। हर कदम पे मुनाफिकत का बाजार गर्म है। मोमिन तो एक होता है अंदर बाहर से, कोलो कालो सदीदा कहना है बाला, एक ही होते हैं। उसकी बात अटल होती है। आगे एक आयत सुन लें फिर माइंड अप कर लेते हैं। बड़ी अजीम आयत है, पढ़ी थी हजरत पता 4 नंबर इसको कह जाएगा जाएगा उन्होंने क्या भैया ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। हाँ जी 4 नंबर आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा रअयतहुम तु'जिबुका अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنا يؤفكون। खालिद साहब यकीनन हम बदकिस्मत कौम हैं, हमें कुरान नहीं पढ़ाया गया, समझाया नहीं गया। पढ़ा तो है बचपन से पढ़ा है, समझाया नहीं गया। ये सच्चे मोती हैं, ऐसे फेंकने वाली चीज़ें नहीं हैं। नौज़ुबिल्लाह ऐसी ज़बरदस्त एक नया नक्शा खींच के कुरान, हमारे मजहबी हों या सियासी हों या हम खुद हों, उनकी मिसाल ऐसा नक्शा लाया। कहता तुमने कभी देखा वइज़ा रअयतहुम तु'जिबुका अजसामुहुम, इनकी शक्लें देखिए, बड़े बड़े पेट निकाल के फिर रहे हैं, दाढ़े इतने रखे हुए हैं। बल्कि तु'जिबुका, उनके अजसाम देखें तुम्हें हैरान कर देंगे। बड़े बड़े पटे और बड़े बड़े अम्माम में बड़ी बड़ी पगड़ियाँ, इसी तरह ये हाँ नरम हथां वाले खान का जब बैठे लोगों का माल बटोर दे। इसी तरह ये सियासी पंडित, इनके शक्लें देखे ना, ये एक किस्म का नहीं मुनाफिकत, इनके 20 रंग की मुनाफिकत भरी हुई है। कहते कुछ करते कुछ। यही अल्लाह फरमाया। कभी गौर तो करो इनके अजसाम के ऊपर, बड़ी बड़ियाँ शेरवानियाँ पहन के आते हैं, असम्बली सूटर बूटर हो गए, लगता बड़े बड़े परहेजगार आ गए ने, बड़े कमिटेड लोग ने।
बड़े करैक्टर वाले लोग हैं, इनके साम पर गौर तो करो। भाई इज़ा राई तो हम तो अजब का अजसाम हम कहना वही यकूलू तस्मा ली कौलिहिम। ऐसी ऐसी लच्छेदार तकरीरां सिरे जंद चढ़ गए। हजरत तुसी भी तकरीर कर रहे सुनते आ रहे सिरे जंद चढ़ गए। कैसी लगदियां ने लच्छेदार तकरीरां, मोह लेंदे ने बंदे नूं। नारा तकबीर निकलदा। मौलवी साहब ने मजमे में बनी रखे है हाँ। कि नहीं लग देता। यही आयत है। कहना वह यकूलू जो वो गल्ला करते हैं, जब वो बयान करते हैं तो तस्माऊ लिकाउली, बड़े गौर नाल सुनते हैं उन्होंने बातों नूं। जड़े अगे बैठे होंदे ना मोहरे अखां दे कन्नां दे बहर अंधे और बहरे वो लोग बड़े बड़े लच्छेदार तकरीना मौलवी करनगे मस्जिदां दे। एक बार चला गया, कई अगे गए, बड़ा मजमा बनता हुंदा सी, बड़ा ही मजमा बनता था। आपको पता है ये एम्बल आक्रम बड़ा बड़ा मदरसा आपके उधर भी टाउनशिप में बहुत बड़ा ओह बन लेंदा सी बंदे। आपने कभी सुना जी बड़ी दफा हजरत साहब, आपने सुना कमर साहब सर गए नाल रहने सेक्रेटरी रहने होंगे। इलेक्शन दे कैसी रस्तेदार तकरीर करता है? हाँ ये क्या तो है जी? कौन करता क्या है? हाँ ठीक, यहाँ भी करता था। हो गया ये मैं एक मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ, सारे इस तरह कर दे। जाए हम मसाजिद में, इनके जिस्म देखें, इनकी बातें रखें, और रसूल के नाम ले ले के झूठ बोली जाएंगे। रसूल ने ये फरमाया, रसूल ने ये फरमाया, लग पता जाएगा। हाई कोर्ट तो झूठा साबित होया हाँ हाँ, एक नहीं सारे मजहब सारे भी सारे सारे इन्हें रंग देखने वाले हैं सियासियों ने, और इन्होंने दाड़ा रखा सही ते करो के जो बदजबानियाँ गलत मर्द गोला बंदे ने दसी जाता। कसूर सर साड़ा है तो लेकिन तो आज तो देखें कैसी है। आज तक सेल्फ एक्सप्लेन एक हाँ मिसाल भी देखें कैसी दे। हाँ, बिल्कुल। ये मेरा कुरान है, ये मेरे मौला की किताब है ये, और किसी ने किरात करता जितना मर्जी फने फन बनी बैठे। इसकी औकात का पता है ना, जिस चीज़ से पैदा किया गया पता है ना, वो क्या लिहाज करेगा। सिर्फ तकवे वाला इंसान अल्लाह के नज़दीक बेहतर है। ये जो बड़े बड़े लच्छेदार तकरीरें करने वाले हैं, इनकी कोई शर्माई नहीं हुई अल्लाह के हुजूर में। इनका तो रास्ता ही जुदा है। जब दुनिया में रहते रास्ता जुदा कर रखा था, तो वहाँ भी जुदाई है, रसूल से तल्लक ही क्यों नहीं है। वह इन तस्वा इन यकूलू जब बोलते हैं तस्मा लिकौलिहिम। वाह जी वाह, क्या बयान किया जी, क्या बात है। मजमा लुट के ले गया। सियासी भी बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़े बड़े लच्छेदार लोगों ने सब जबाग दिखाते ने, समा बांध देते। यकीन जाए ऐसे ऐसे गुजरे हैं, कहते हैं सुबह फजर हो जाती थी, रात को शुरू होते थे फलां साहब इशा के बाद, और फजर हो जाती थी। इतनी उनकी बातों में मिठास होती थी। जाहिल पंथ खाना और सीखना, जाहिल वही गप्पे मार के लोगों को बस राम कर लेना। कहना इनकी मिसाल ये है, ये जो तो जब अजसामा हूँ, बड़ी बड़ी कलगियाँ, बड़े बड़े आनंद जसे ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਕੂਲੇ ਨਰਮ ਲੋਈ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਰਾਮੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲੋਹਾ ਥੋੜਾ ਚਲਾਇਆ
ਕਦੀ ਲੰਬਾ ਚੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਸਖਤ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਚੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਦ दूध भी मिलता, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਤੋਂ सख्त होने हैं। ये तो उधर पता चला गया, अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे फिर पता चलेगा। मार खा के गरीबां मस्कीनां ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ शिफ्ट ਦਾ? हो गए अंदर सारे। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ। हाँ जी। और काफी ਇਹ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਂ ਨੇ, तोंद बाहर निकल ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਹ ਪੰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। फरमाया है ये क्या है, ये लोग, ये हमारी मिसालें भी बयान हो रही हैं। का अन्नाहुम खुशबु मुसन्नदा, क्या अलग बयान कर सकता है इस मिसाल को समझाना। आखिरी मिसाल हाईएस्ट मिसाल है। कहता है इनकी शनाख्त ये है, ये अंदर से दीमक ज़्यादा लकड़ियाँ हैं, खाली हैं अंदर। जिस तरह लकड़ी को दीमक लग जाती है ना अंदर, बाहर लगता ये खड़ी है लकड़ी, ताकत नहीं है, ताकत नहीं, ताकत लेस, खोखली। ये खोखले हैं अंदर से। का अन्नाहुम, ये अल्लाह की दी हुई मिसाल है हजरत साहब, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा। खुशबू मुसन्नदा क्या, लकड़ियाँ खुश, ये इनको सहारे की सिर्फ जरूरत होती है, बिल्कुल सिर्फ सहारे पे खड़ी हैं। अकेले नहीं खड़ी होती। हाँ, कान्नाहुम खुशबू, आज पीर दे मुरीद निकल जान और फारग कर मरीद ये कहेंगे आज निकल जान, जवाब दे देने तो देखो क्या हशर होंदा पीर साहब ने। करलांदा फिरेगा जंगलों च जाके, कितने चला गया। खुशबू मुसन्नदा क्या कलाम कि ऐसे ही है जी ना। आगे है यहसबून कुल्ला सहतिन अलैहिम, यहसबून, ये जो इस किस्म के कैटेगरी है जिसको तुम देखते हो बड़ा जुस्सा, बड़ा ज़बान से शरीनी, ये समझते हो, तो अल्लाह कह रहे हैं यहसबूना कुल्ला सहतिन अलैहिम। ज़रा जी आवाज़ किसी बिलीन में आके कोरा के मियों को इधर जगह सब तो ज़्यादा डरपोक मुनाफिक होंदा, खड़ा ही नहीं हो सकता। ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। हाँ देखा था सारे ज़माने ने वो सीन देखा। ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੇਅਰਡ। हाँ वो डर गया था। कफन पहन लिया। ਆਓ ਇਹਦਾ कुल्ला सेहत, हर बात चूम भी हो गए ये डर के दौड़ जा रहे। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ये अल्लाह ने इनकी शनाख्त बताई है। मैंने भाई मैं नहीं कह रहा, ये मौला कह रहा है जिसका कलाम है। कुल्ला सेहत, हर बात यह सबोना गुमान करते हैं, ख्याल करते हैं ज़रा सी आवाज़ बेनगू भी आ गई है खतरा, ये छड़ के दौड़ जाएंगे पूरे मजमे नहीं। इतनी बकवासियात कर रहे हैं, किसी जहर उगल रहे थे, ज़रा जिन्नी आवाज़ आई था दी वो गायब हो गए। मेरे मालिक का ये फरमान है, ये उसकी वो दे सकता है ऐसी मिसालें कि ये यकीन जाने यही मुनाफिक की यही निशानी। ज़रा साहब उन्हें बांपा ना आई मेरे पर वो नहीं ठहरेगा। सब तो डोपोक ये इसकी हैसियत है मुनाफिक। फरमाया हुमुल अवदू,
یہ بہت بڑے دشمن ہیں اللہ کے رسول کے. ان کو یہ نہ سمجھیں ہمارے یہ صالحین ہیں, صالحین ہاتھ چومتے نے جا کے اپنے جے بندے دے بوئیں بھریا پہ اندر وہ ہاتھ چومنے. آپ اور ٹیچر پیپر رکھا کئی دن ملیاں چڑھتے ہیں ہاں کھانے میں ملیاں چڑھتے نفرت انگیز رویہ انہوں نے فرمایا ہم العدو فاحذرہم, ان سے محتاط لینا ہے. فاحذرہم ہم العدو کیا کرام ہے, یہ اللہ کے دشمن ہیں بھائی. قرآن کے دشمن, اللہ کے دشمن, اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. مومن تو بیچارہ اس کی لائف ہی اور ہوتی ہے, ہیں اور رنگ میں وہ رنگ ہی ہو رہا ہے. اللہ کے مومن صرف نہ ڈر ہوتا ہے, انہوں کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. حضرت صاحب سمجھ آ رہی ہے خلاق صاحب؟ دیکھ گیا, یہ ہے قرآن. کاش اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے, سب آپ کو اس کا فہم ادراک آئے آپ کے اندر. آج ہمیں کل نہیں ہے. کوشش کریں اپنے طور پہ ان آیات کو تھوڑا تھوڑا سمجھ کے پڑھیں آپ. یہ زندگی بدل دیتی ہے انسان کی, زندہ کرتی ہیں. جو بھی چاہتا ہے زندگی لینا لے من کا نا حیّن, جو زندہ رہنا چاہتا ہے زندگی لینا چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے ملے گی. لچھے دار تقریریں سے نہیں ملے گی. وہ تو اپنا مجمع اکٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. فرمایا آگے اللہ نے اخیر کرتی ہے. اگلا لفظ پڑھے جی حضرت, مجھے تو اتنا ٹیسٹ آ رہا ہے, میں نے کہتا ہوں نہ ختم ہو, لیکن ٹائم زیادہ ہو رہا ہے دوستوں کا. اتنی زبردست یہ کلام ہے. اللہ کیا لفظ قاتلهم اللہ انا یؤفکون. وقار صاحب اللہ کہہ رہا ہے قتل کرے اللہ ان کو, ہلاک کر دے. قاتلهم اللہ, اللہ بیڑا غرق کر دے, بیڑا غرق کر دے اللہ نے, قتل کر دے. قاتلهم اللہ, اللہ قتل کرے انہوں. یہ دیکھیں کتنی ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہے, بدعا ہے, اللہ کی طرف سے وعید ہے. قاتلهم اللہ انا یؤفکون. کس دنیا میں پھر رہے ہیں؟ کیا کس کے مغروری ہے, کس بات کی؟ یوفک ہوتا ہے کس جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہو. افق کو جھوٹ کے کہتے ہیں. انا یوفکون, کہاں سین مار رہے ہو, کہاں بہ کے پھر رہے ہو. کبھی کینیڈا چھپ گئے, کبھی کوئی امریکہ جا کے چھپ گیا, کبھی کوئی برطانیہ واڑ گیا, کوئی یہاں ہی فتوی دیا جا رہا ہے. جو ربا ہے نا, ربا سود, وہ حلال ہے, یہاں ہی فتوی دیا جا رہا ہے. قاتلهم اللہ انا یؤفکون. میرا غرق ہو جائے ساڈا, وہ مارے جاؤ. یہ کیا کر رہے ہو؟ ربا کو حرام اللہ نے حرام کہا ہے سود کو. یہاں بیٹھا صوفی انٹرنیشنل لیول دا حکیم, انٹرنیشنل لیول دا سکالر صاحب نے, تو جنہوں نے اللہ کے سود کو, جس نے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا, اس نے سود حلال کر دیا. سارے دنیا میں اس کا فتویٰ چلتا ہے. ایسا دھوکہ دیا ہے. کیا لاجک تھی ہے, لاجک جو نے بیان کیا پڑھ لو. ہر میزان بینک جاؤ تمہیں فتویٰ مل جائے گا, لکھے پڑھ لینا. ہر میزان ہوں تو ہر بینک وہ فتوی فارن بینک بھی چلے گئے. سود کو بیچنے کا کیا ہے؟ سود بیچنے, خرید و فروخت کے معنوں میں لے لیں سود کو, تو
اس پہ جتنا مرضی منافع کما لیں. یہ ہے بزنس شو کر دینا بزنس یہ ہے ان کے جو ہتھ کنڈے یہ جو پھیلائے ہوئے ہیں. تو قاتلہم اللہ انا یؤفکون. کہاں پہ بہ کے پھر رہے ہو؟ اللہ غارت کرے، مار دے، قتل کر دے. یہ اللہ خود کہہ رہے ہے، ہم نہیں کہہ رہے. اللہ قتل کرے گا. بس اتنا ہی کرتے ہیں. باقی تھوڑی سے آیتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس پہ رکھتے ہیں، ذرا فریش ہو جائیں گے آپ بھی ہم بھی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نہایت کمزور ناتواں انسان، بڑی غلطیاں اور بڑے گناہ ہیں. یا اللہ ان سب کو معاف فرما دینا. ہمارے جو بھائی بہن اس درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں ان کے دل اور دماغ کو کھول دینا. ہر بندے ہر بہن کے جو ہے ذہن اے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اس کو پھیکا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن کریم کو غور سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما. ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں اس نور کو عام کر دے. بچوں میں، بڑوں میں، خواتین کے اندر اس نور کو اجاگر کر دے. ہماری اصلاح فرما اور ہمیں اپنے جو پسندیدہ کام ہیں آپ کے قوانین ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم